my Lord. Hosanna in the highest.
lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Yes, Lord, you reign above everything. Everything that you have created, O Father. The man, the beast, every small and big creatures, Lord. You are the glorious one, Father. I just want to thank you, Lord. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. And the people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We are on our knees. We are on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Yes, Lord. We want to thank you, Father. Thank you, Jesus. You are here, Lord. You are watching over us. You are speaking to us this morning. Thank you, Lord, for your loving arms that just we can go into it, Lord.
Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Once again, good morning, church. सभी को सुप्रभात। That was a very nice worship. बहुत ही अच्छा वर्शिप था। Let's give a big hand to our worship team. सबके लिए तालियां बजाएं। And good to see everyone. और सभी को देख के अच्छा लगा। Want to say pastor is on a mission trip. पासवान जो हमारे हैं वो मिशन ट्रिप पे गए। He's on a mission trip in Orissa. जो उड़ीसा में गए हैं वो। So please pray for him. उन्हें प्रार्थना में रखिए। And pray for the entire team. और पूरी टीम के लिए प्रार्थना करिए। So just few announcement. कुछ सूचनाएं। Like in the month of May, there'll be a conference. मई महीने में कॉन्फ्रेंस है। So it will be in Andheri. जो कि अंधेरी में होगा। So we'll soon let you know the dates. आपको तारीख बता दिया जाएगा। It will be shared in our WhatsApp group. व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। And also one more important announcement. और एक महत्वपूर्ण सूचना। That 11th of April, which is a church picnic. 11 अप्रैल को चर्च का पिकनिक है। Many have already given their names. बहुत लोग ने अपने नाम दिए हैं। So, but the owner of the resort. जो रिसोर्ट का ओनर है। Had called asking for an advance. जो वो एडवांस के लिए पूछ रहा है। So requesting everyone at least pay some amount as advance. इसी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो पैसा वो पहले आप पे कर दीजिए। So because we have to give some advance to them. क्योंकि हमें एडवांस देना है उन्हें। So please pay as soon as possible, if possible within 1 or 2 days. जितना जल्दी हो सके आप कर सकते तो कर दीजिए। So you can for this you can contact brother Gunwant. आप इसके लिए गुणवंत भाई से संपर्क कर सकते हैं। So that's it for the announcement. अनाउंसमेंट के लिए इतना ही। So I'll pray for the offering. भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। Father God, you want to thank you, Lord, for this beautiful day, oh Lord. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही अच्छे दिन के लिए परमेश्वर। Thank you, Lord, for this church, oh Lord. इस चर्च के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। A beautiful family, oh Lord. बहुत ही सुंदर परिवार के लिए परमेश्वर। It's your love that keeps us united, oh Lord. ये आपका प्यार है जो हमें एकता रखता है परमेश्वर हमारे बीच। Lord, we want to thank you for each and everything that you have given us, oh Lord. हम हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने दिए हमें। You are our provider, oh Lord. आप हमारे देह को परमेश्वर। Who takes care and provide for all our needs, oh Lord. जो हमारा ख्याल रखता है और हमें हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। Lord, we want to pray for everyone in this church, oh Lord. हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं इस चर्च में। Let there be no lack in anyone's life, oh Lord. किसी के भी जीवन में कोई दुख ना हो परमेश्वर। And also we pray for all the needs of our church, oh Lord. और जो भी चर्च का ज़रूरत है परमेश्वर उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। And we believe, Lord, that you will provide, oh और Lord. हम विश्वास करते हैं कि आप हमें दोगे। Lord, we pray for our today's message also, Lord. और आज के संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। That you speak to each one of us, oh Lord. ताकि आप सभी से बात करना। Touch our hearts and lives, oh Lord. हमारे हृदय और जीवनों को छूना। Give us a beautiful time this morning, oh Lord. बहुत ही अच्छा समय देना है इस सुबह में। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता।
One day there were two friends. एक बार दो मित्र थे ऐसे. So one friend was telling another friend एक मित्र जो है दूसरे मित्र को ऐसे बोल रहे थे, that I think God does not love me, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, or God does not care about me, या परमेश्वर मेरा ख्याल नहीं रखता, because there is so much of problem going on in my life. क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे समस्या हो रही है I don't think he listens to my prayer. और मुझे नहीं लगता वो मेरे प्रार्थनाओं को सुन रहा है. So he was, this friend was telling the another friend ये जो है एक मित्र दूसरे मित्र को ऐसे बोल रहे थे, lot of negative things about God, बहुत सारे नकारात्मक चीजें बोल रहे थे परमेश्वर के and he बारे was में. keeping on complaining about God. वो जो है पूरी तरह से कंप्लेन कर रहे थे परमेश्वर का. But this friend said, ये जो दूसरा मित्र ऐसे बोले, he replied that God is not like this. What do you think? उन्होंने ऐसे बोला कि आप जो सोच रहे हैं वैसा हमारा परमेश्वर नहीं है. Then he told about the parable of the lost sheep. उन्होंने एक कहानी सुनाया, एक जो खोया हुआ भेड़ के बारे में. From Luke chapter 15, लूक चैप्टर 15 में हम देख सकते हैं. verse chapter 15 verse 3 and 7. 15वें इसमें तीसरे इसमें हम देख सकते हैं लूक का. He said, if we read this parable, वो उन्होंने ऐसे बोला कि जब हम ये कहानी पढ़ते हैं you will know what God is really. आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कौन है और क्या है. So before we read the passage, हम रीड करने से पहले, पढ़ने से पहले I want to tell you who God is. मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कौन है. What kind of heart does our God have? परमेश्वर के पास कैसे हृदय है, कौन सा हृदय है. The Bible says that God is a loving shepherd. वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर जो है वो एक अच्छा शेपर्ड है, चरवाहा है. So like in the story we see, हम इस दृष्टांत में ऐसे देखते हैं, even when he had 100 sheep, उनके पास जो है 100 भेड़ थे, and one of the sheep went missing, उसमें से एक जो भेड़ थे वो खो गए. he goes searching for that lost sheep. और जो है परमेश्वर जो है वो एक खोया हुआ भेड़ के खोजी में जाते हैं. God does not say here, और यहाँ पे परमेश्वर ऐसा नहीं कहता, I'm having 99 sheep, मेरे पास 99 जो है भेड़ है मेरे पास अभी, so that's enough. उतना काफ़ी है. The world will say like this, दुनिया ऐसे कहेगी, oh, we have 99. अरे हमारे पास तो 99 है, Why go and search for that missing one? क्यों मैं वो एक जो खोया हुआ हूँ उसको क्यों खोजूं. The world will say, forget that lost one. दुनिया जो कहेगी वो भूल जाओ उसको जो खोया हुआ है. But that's not our God. लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है. He goes after searching for that lost one. वो जो खोया हुआ है उसको खोजी करते हैं हमारे परमेश्वर. And here in this story we see, यहाँ पे इस दृष्टांत में ऐसे देखते हैं, he does not wait for that sheep to come back. वो ऐसे बाट नहीं जोते, रुकते नहीं कि वो जो खोया हुआ है वो वापस आए. But God takes that initiative. लेकिन परमेश्वर जो है वो पहला कदम बढ़ाते हैं. He goes after that lost sheep. वो जो है वो खोए हुए भेड़ के पीछे हो लेते He हैं. is searching for that sheep, वो खोए हुए भेड़ को ढूंढते हैं. and he doesn't give up. वो जो है हार नहीं मानते हैं. And that friend said to that another friend, वो जो मित्र दूसरे मित्र को ऐसे बोल रहे थे, that is God's love. और यही परमेश्वर का प्रेम है. God's love for you and me. परमेश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए. So I like to read from that chapter 15 verse 3 and 7. 15 के तीसरे और चौथा वाक्य में पढ़ना चाहता हूँ. So Jesus is telling this parable. यीशु मसीह ऐसे दृष्टांत में कह रहे हैं, Like suppose one of you had 100 sheep तो तुम में से कौन जिसके पास 100 भेड़े हैं and loses one of them, उनमें से एक खो जाए, doesn't he leave the 99 तो 99 को जंगल में छोड़कर and go after that one lost sheep उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता रहे, until he finds it? जब तक मिलते नहीं हैं. And when he finds it, और जब उसको मिल जाती है he joyfully puts it on his shoulders तो वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेते हैं. and goes home, और घर जाकर and then he calls his friends और वो अपने पड़ोसियों को, मित्रों को बुलाते हैं, and neighbors, पड़ोसियों को भी बुलाते हैं. and they say together, they say, और वो ऐसे कहते हैं, rejoice with me, मेरे साथ आनंद करो I have found my lost sheep. क्योंकि मेरे खोई हुई भेड़ मिल गई है. I tell you, in the same way, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से there'll be more rejoicing in heaven हम जो है स्वर्ग में आनंदित मनाएंगे over one sinner who repents और जो मन फिराते हैं
then over 99 righteous person जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता who do not need to repent. जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। So we see here in this story हम यहाँ पे ऐसे दृष्टांत में देखते हैं like how the world values the majority. दुनिया जो है जो बहुत सारों को कैसे महत्वपूर्ण देते हैं। Like the world will focus here on the 99. दुनिया जो है वो केंद्रित करते हैं वो 99 चीज़ों को। Like the world will say, oh, we are 99. दुनिया ऐसे कहेगी, संसार ऐसे कहेगी कि हाँ हम 99 है, We are successful people. हम जो है बहुत सक्सेस हुए लोग हैं, We are strong. हम जो है ताकतवर है। Why go after searching that one person तो क्यों हम वो एक के लिए खोजी करें, who is a failure, वो जो हारा हुआ है, who has left us and gone? वो जो हमें छोड़ के चले गए हैं। But that is not for God. लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। God shows that परमेश्वर दिखाते हैं every single person हर एक मनुष्य जो है matters to him. उनके लिए महत्वपूर्ण है। Even the one who has gone far away. वो भी जो उनसे दूर चले गए हैं। The world easily says, oh, forget the lost. संसार जो कहते हैं कि वो जो खोया हुआ है उनको भूल जाओ। Why to go waste our time searching for that lost one? क्यों हमारा समय बर्बाद करना है उसको खोजने में। But that is the world how it operates. ये लेकिन संसार हमको ऐसे बोलते हैं। The world considers that one who has gone away वो संसार जो है वो एक जो खोया हुआ है is a failure. वो जो है हारा हुआ इंसान है। What a failed person can do. और जो हारा हुआ है वो क्या बोल सकते He हैं, is no use for us. वो हमारे लिए कोई भी उपयोगी का नहीं होता। But we see that God is actively seeking the lost. लेकिन हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उस हारे हुए को भी खोजते हैं। And He keeps on seeking. वो जो खोजते ही रहते हैं परमेश्वर, And He never stops. और वो कभी रुकते नहीं हैं। If you see the world, हम संसार को अगर देखेंगे तो they will always value us by the worth, how valuable each one is. संसार जो है हमें हम कैसे महत्व या कितने बड़े हैं उसके हिसाब से हमको वो वैल्यू कीमत देते हैं। People will see like whether you are financially stable वो दुनिया जो है आपको देखेंगे कि आप कितने पैसे वाले हो, or you are well known. कितने पहचान वाले हो। It can happen like when choosing a friend also. ऐसा भी हो सकता है जब आप एक किसी मित्र को चूज करते हो, चुनाव करते हो, You will always like to choose a friend, आप ऐसा भी चुनाव करते हो एक ऐसे मित्र को whether in school, college or a workplace. जहाँ पे भी स्कूल में, कॉलेज में या काम करने की जगह पर हो, You like to be around somebody who is famous वो आपको ऐसा लगता हो कि जो फेमस है या पहचान है उसके साथ or हम मित्र somebody who is बनाएं। very rich. जो या ऐसा हो सकता है जो पैसे वाला हो उससे हम मित्र If we बनाएं। see in this story, हम यहाँ पे इस दृष्टांत में देख सकते हैं like the sheep who left and went far away जो भेड़ जो है वो दूर चले गए थे, वो was like somebody who is a failure. वो ऐसा एक है जो हारे हुआ व्यक्ति है। And what this failed person can bring. और ये जो हारा हुआ व्यक्ति क्या ला सकता है। So the world tells, let it be, it's okay, let that failed person go away. संसार ऐसा कहता है जाने दो, हारा हुआ व्यक्ति है उसको जाने दो। But that's not what God wants. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। God is a loving shepherd. God is a loving shepherd. परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला एक अच्छा चरवाहा है। He searches for that failed person. वो जो हारा हुआ वो को भी खोजते हैं। God's love परमेश्वर का जो प्रेम है is not based upon our performance हमारा जो परफॉर्मेंस है या हम क्या करते हैं उसके हिसाब से नहीं है, or not based on our talents. या हमारे जो टैलेंट के ऊपर से नहीं है। So if we see that God loves us, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। no matter what condition we are in. कैसे भी हो, हम कौन से भी कंडीशन में हो, परमेश्वर प्रेम करते हैं। The world wants to avoid what is inconvenient. संसार जो है वो जो है अवॉइड या निकालना चाहता है जो उनके हिसाब से नहीं है। That's why it says, leave that 1 person who has gone. इसके लिए वो ऐसे ही संसार ऐसे कहते हैं जो एक जो गया है उसको छोड़ दो। Why to take a risk हम क्यों वो रिस्क लेना चाहते हैं जो एक गया है, going behind that failed person? वो हारे हुए व्यक्ति के पीछे क्यों जाना है। The world will say that you're just wasting your time. संसार ऐसा कहेगा कि आप अपना समय जो है वो नष्ट कर रहे हो उसके पीछे जाने से। Saying that leave that person, it's better that he has gone. वो ऐसे कहेंगे कि छोड़ दो, अच्छा हो गया वो चले गए। But if you see the love in God's kingdom, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम वो प्रेम देखते हैं। the love involves risk.
वो जो प्रेम जो है वो उसमें रिस्क है and there is a sacrifice. और वो एक त्याग भी दिखाता है. If you see the world, it लेकिन will संसार always में- blames the lost person. संसार जो है हमेशा जो खोए हुए व्यक्ति के ऊपर जो है वो ब्लेम या उसके ऊपर हम लोग बोलते रहते हैं उनको. The world will say maybe that person has done some mistake दुनिया ऐसे कहेगी कि जब हो सकता है वो जो खोया हुआ है उन्होंने कुछ तो गलती की है and that's why he is gone away. और इसीलिए उसने वो चले गए ऐसे. But we see in this parable, लेकिन इस दृष्टांत में हम ऐसे देखते हैं, if we see the shepherd, हम जो है वो चरवाहा जो है, when he finds the lost sheep, जो चरवाहा जो खोए हुए भेड़ को जब उनको मिलता है, he does not punish that sheep, वो जो है भेड़ को उनको दंड नहीं देते, but he puts it on his shoulder लेकिन वो अपने कंधे पर रखते हैं and carries it home. और उनको उठा के लेके जाते हैं घर पे. But the world will tell us लेकिन संसार ऐसे कहेगी like that person needs a punishment. वो जो व्यक्ति है उसको दंड चाहिए. We see that God's love हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है simply restores it. वो जो है हमारे जो भी गलतियों को है उसको पूरी तरह से छुड़ा लेते हैं. Today the world, when a person make mistake, अभी जो है दुनिया में जो है कोई भी गलती कर सकता है. it will shame that person because of the failure. अगर कोई भी अगर गलती हो या हारा हो तो दुनिया जो है उसके ऊपर नाम लगाते हैं. When person makes a mistake, जब व्यक्ति जो गलती करते हैं the world, the society will mock that person सोसाइटी उनके ऊपर टट्टा उड़ाते हैं because they have failed. क्योंकि वो हार गए हैं. But here the word says लेकिन यहाँ पे वचन ऐसा कहता है Jesus rejoices यीशु मसीह जो है आनंदित हो रहे हैं over that one sinner who repents. वो जो है वो जो अपने आप पाप को जो है मानते और आ जाते हैं. So we see here the restoration. हम यहाँ पे जो है रिस्टोरेशन के बारे में देखते हैं. This restoration has brought what? Celebration. और ये जो है मनमुटा पाप को ये स्वीकार करके जो वापस आते हैं हम देखते हैं कि उसमें जो आनंदित है And no condemnation. और उनमें जो है हम दोष नहीं लगाते. Today the world cares about, more concerned about your image. संसार जो है आप कैसे है वो देखते हैं. But for God it's more concerned about the relationship. लेकिन परमेश्वर के लिए आपका और परमेश्वर का संबंध क्या है वो महत्वपूर्ण है. Today people are worried about what is my image. आजकल की दुनिया में देख सकते हैं कि लोग जो है अपने आप में देखते हैं कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ करके. But God is only thinking about the relationship. लेकिन परमेश्वर से जो है वो हमारे संबंध के बारे में ही सोचते हैं. For God, relationship is more important thing than anything else. परमेश्वर के लिए हमारा संबंध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है. So let us see why a person must have failed. हम देखते हैं देखेंगे कि लोग जो है वो व्यक्ति जो है वो हार क्यों गया है. Or why that person must have gone far away from God. लेकिन वो व्यक्ति क्यों परमेश्वर से दूर चला गया है. Sometime like it can happen, maybe the person failed publicly. ऐसा हो सकता है दुनिया के सामने या लोगों के सामने वो हार गया होगा. Maybe some mistake that he made in his life, which was open, which was like visible to everyone. ऐसा भी हो सकता है उन्होंने ऐसे गलती किया है जो सब लोग ने देख लिया हो. Or some of his weakness, या ऐसे उनकी कमजोरियों को देख लिया होगा. like got exposed to everyone. जो है वो सबको दिखा चुके होंगे उनकी कमजोरी. And now because of that, और उस कारण के वजह से he is ashamed. वो शर्मिंदा हो रहे हैं. And now like he can hear, आप देख सकते हैं like you can hear voices वो आवाज़ सुन सकते हैं that you will never recover from this. वो आवाज़ ऐसा है बोल सकते हैं कि आप जो है इस चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते. But the person needs to understand one thing, लेकिन वो व्यक्ति को समझ में आना चाहिए that failure can be a one time event, वो जो हार जो है एक बार ही हो सकता है. but it can never be your identity. लेकिन वो आपका जो है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता. Also it can happen failure. ऐसा भी हो सकता है. Also the person might feel like I'm a failure because ऐसा वो व्यक्ति बोल सकते हैं कि मैं हार गया हूँ क्योंकि because when he starts comparing himself with the 99, क्योंकि हम जो है वो 99 लोगों के साथ जो है तुलना करने की कोशिश करते हैं.
Maybe that person is thinking वो व्यक्ति ऐसा सोच सकते हैं that when he sees other people, वो जब दूसरे लोगों को देखते हैं he feels that other people are so much blessed in their lives, वो ऐसा सोचते हैं कि अरे बाकी लोग जो है वो बहुत आशीषित पा चुके हैं, and he starts comparing with others, और वो जो है अपने आप को दूसरों से तुलना करने की कोशिश करते हैं, and he feels that I am not blessed. और वो ऐसा लगता है कि मैं तो आशीषित नहीं हूँ. When he sees other people, जब वो दूसरों को देखते हैं and he starts comparing them, और जब वो तुलना करते हैं and he starts comparing they are successful in their marriage, और वो ऐसा तुलना करते हैं कि उनके शादीशुदा जीवन में वो बहुत सक्सेसफुल है, they are successful financially, उनके पास पैसा है, and they are successful in every area in their life. वो हर एरिया में जो हर क्षेत्र में उनके पास सब कुछ है, And because of this comparison, और इस तुलना की वजह से he starts feeling that he is a failure, और वो उसको ऐसा लगता है कि वो हारा हुआ है, and he goes away from God. और वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं. So it is nothing but comparison ये और कोई नहीं, आप तुलना करने की कोशिश करते हो, that draws him away from God. और ये जो चीज़ है आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है. So comparison actually what it does, तुलना क्या करता है? it will actually magnify your weakness, आपके जो कमजोरियों को वो और बड़ा करता है, and it will hide God's grace. और वो जो है परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको छुपा देता है, So he is ashamed. और वो शर्मिंदा होता है. So we see this shame, ये जो शर्मिंदगी है it speaks louder than the truth. वो जो सच्चाई से भी ज़्यादा बड़ा बोलते हैं. What we can say about shame? आप शर्मिंदगी के बारे में क्या बोल सकते हैं? Shame is like a voice inside your head शर्मिंदगी ऐसे एक आवाज़ है आपके सिर के अंदर that keeps on reminding you again and again जो आपको बार बार याद दिलाता है of what you did wrong. आपने क्या गलती की है. Like shame doesn't say शर्मिंदगी जो है ऐसा नहीं बोलते that you made a mistake. आपने गलती की है. Shame says शर्मिंदगी ऐसे बोलते हैं that you are a mistake. आप एक गलती हो. So what shame sounds like? शर्मिंदगी कैसे आवाज आता, Like उसका some आवाज कैसा words है? like of shame which sound in your mind, शर्मिंदगी का आवाज कैसा है? and these words come again and again in your mind. और ये जो आवाज है बार बार आपके दिमाग में आएगा. Like other people, other people don't fail like you, आपको ऐसा आवाज आएगा कि दूसरे जो है वो हारते नहीं है आपके जैसा, or God must be disappointed in you. या परमेश्वर जो है मेरे से बहुत दुखी है मेरे से. Why God would keep forgiving you? परमेश्वर जो है आपको क्यों माफ करते हैं. So shame is like a replay. शर्मिंदगी जो है वो एक ऐसे रिप्ले बार बार चलाते सोचते रहते हैं. Replay of your failure. आपके आप हारे क्यों है उसके बारे में सोच दिलाती And you है. keep thinking of that words again and again. और आप जो है वो शब्दों को जो है बार बार सोचते रहते हो. And finally, you have that assurance that God does not love me. और आखिर में आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता. Like the person who fell back into a bad habit again. जैसे मैं कहना चाहता हूँ कोई व्यक्ति को एक बुरी आदत है तो, Like someone made a promise that he will not do certain thing. और कोई व्यक्ति ऐसे वायदा किया होगा कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, But he fell again in that. लेकिन वो वापस उसी चीज़ में गिर गए. The truth is, सच्चाई ये है कि truth says that you fell down, now सच्चाई get up. You fell down, so you can get up. सच्चाई ये है कि आप गिर गए हो ताकि आप उठ पाओ. But shame will say, शर्मिंदगी ऐसे बोलते हैं, see, nothing has changed. कुछ भी बदला नहीं है. You are fake. आप जो है वो फेक हो. Don't even pray. It's pointless praying. Don't even pray. It's pointless praying. आप प्रार्थना मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला है. So these words keep on coming in your mind. ये जो शब्द है आपके दिमाग में ऐसे चलती रहेगी. So what happens instead of running to God? तो क्या होता है, आप परमेश्वर के नज़दीक जाने से भी क्या होता, नज़दीक नहीं जा पाते हो. You stop praying to God altogether. आप प्रार्थना करना बंद कर देते हो. Yes, sin makes us stumble. पाप जो है आपको गिराता है. But shame makes us to hide. लेकिन शर्मिंदगी जो है उसको छुपा देते हैं. See, if you remember the story of Adam and Eve,
आप अगर एडम और ईव का जो कहानी है वो अगर आप पढ़ोगे तो when Adam and Eve had sinned, जब एडम और ईव जो है उन्होंने जब पाप किया, what they did, उन्होंने क्या किया? when they sinned, they did not run towards God. वो जब पाप किए वो पाप करने के बाद परमेश्वर की ओर नहीं दौड़े, They were hiding from God. वो परमेश्वर से छुप रहे थे। So we see that shame will tell you, आप देख सकते हैं कि शर्मिंदगी ऐसे बोल सकते हैं, stay away, आप दूर रहो, don't try to come back. वो आप वापस मत आना। But the simple truth is, लेकिन एक सच्चाई ऐसा है, God corrects, परमेश्वर जो है आपको सही करता है, but shame will always condemn you. शर्मिंदगी जो है आपको हमेशा दोष ठहराएगा। God will always say, come back. परमेश्वर जो हमेशा कहेगा वापस आ जाओ, But the words of shame will be, लेकिन शर्मिंदगी के जो शब्द है, stay away. दूर रहो। Everyone will mock at you. आपके ऊपर सब लोग टट्टा उड़ाएंगे, हंसेंगे। It's better you stay away इसके लिए अच्छा है कि आप दूर ही रहो, and don't try to come back. आप वापस ना आओ। And that's why many people do not try to come back. इसीलिए कुछ बहुत लोग जो है वापस नहीं आते हैं, They always try to stay far away from God. और जो वो लोग जो है परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं। So if you think like many people are staying away from God, आप जब देखते हो कि जो बहुत जन जो है परमेश्वर से दूर रहते हैं, तब not because of sin, पाप की वजह से नहीं, they are staying away from God. वो परमेश्वर से दूर रहते इसीलिए, They are staying away from fellowship वो जो है हमारे फेलोशिप से दूर रहते हैं, because of the shame. वो शर्मिंदगी के वजह से। This shame has fully convinced them, वो जो शर्मिंदगी उनको पूरी तरह से बोल चुके हैं कि, and that's why they are not able to return. और वो जो इसीलिए वो वापस नहीं आ पाते हैं। That's why if you see in this parable, ये दृष्टांत में जब आप देखते हो, the shepherd does not wait for the sheep to return. वो चरवाहा जो है वो उस भेड़ के वापस आने तक रुकता नहीं है। The shepherd does not wait that the lost one will come शेपर्ड back. वो जो चरवाहा है वो रुका नहीं है कि भाई वो जो खोया हुआ जो भेड़ है वो वापस आएगा, But he goes searching on his own, लेकिन ये चरवाहा उनके वो भेड़ की खोजी में जाता है। because that's how God's love is. और यही ऐसा ही हमारे परमेश्वर का प्रेम भी है, It speaks louder than the shame. और वो जो है शर्मिंदगी से भी ज़्यादा बोलते, प्रेम ज़्यादा बोलता है। Do you remember Peter? आप पीटर पतरस के बारे में जानते हो? Peter was very bold. पीटर जो है बहुत बोल्ड था, निडर था। He was confident among all the disciples. वो जो है बहुत कॉन्फिडेंट था उनके चेलों के बारे में। You can call Peter as a leader among all the disciples. आप बोल सकते हो कि पीटर एक लीडर था उनके डिसाइपल्स के बीच में। One day he told Jesus, एक दिन जो है वो पीटर जो है यीशु मसीह से ऐसे बोल रहे थे, even if everyone fails, सब लोग हार सकते हैं। he was talking about his other disciple, वो जो है उनके चेलों के बारे में बोल रहे थे, that even if everyone fails, अगर ऐसा हो सकता है कि अगर सब लोग हार गए तो I never will. He will never will fail. मैं छोड़ूंगा नहीं। So that's how confident Peter was. और वैसे ही पतरस इतना कॉन्फिडेंस था ऐसे बोले। And these words of Peter was not fake. ये पतरस जो है ऐसे ही नहीं बोला, झूठ नहीं बोल रहे थे। Peter was confident. पीटर जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस था, And he meant it. और वो ऐसे रखे भी। Why? Because he really loved Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे। But later on we see, लेकिन बाद में हम ऐसा देखते हैं, when Jesus was arrested, जब यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया तभी there was lot of fear everywhere. वहाँ पे बहुत सारे गड़बड़ी थी, डर भी था। And a servant girl, काम वाले, हाँ, वहाँ वो जो काम वाले रहते हैं, servant girl said to Peter, वो उन्होंने जो है वो पीटर से ऐसे बोला, like you were with him, आप जो है यीशु मसीह के साथ थे, so weren't you with Jesus? आप जो यीशु मसीह के साथ थे ना? And Peter was afraid. और पीटर पतरस जो है वो डर गए। He said, Peter said to that girl, और वो जो है पीटर ने उस मनुष्य से ऐसे बोला, I don't know what you are talking about. मुझे नहीं मालूम आप क्या बोल रहे हो। So we see, like if you see the story, it was just a girl. यहाँ पे एक कहानी देख सकते हो कि एक साधारण मनुष्य जो है वो पतरस से प्रश्न पूछ रहा था, But the fear was so much लेकिन वो डर इतना था that he was even afraid of a girl. वो जो है उस साधारण मनुष्य से पतरस डर गया। So it was not a soldier, वो जो है सैनिक नहीं था, not a judge, वो जहाँ का जज भी नहीं था, not even a high priest. वो एक ऐसे प्रीस्ट था,
Just an ordinary servant girl, Peter was afraid of. वो जो साधारण मनुष्य से पतरस डर गया। So we see that fear हम देख सकते हैं डर जो है does not need any powerful voice to shake us. एक जो जोरदार आवाज नहीं चाहिए हमको हिलाने के लिए, Sometimes even a small moment लेकिन कुछ जो क्षण है, छोटा सा क्षण भी जो can है expose your weakness. आपकी कमजोरियों को दिखा सकता है। So we see in Peter's story, हम पतरस के जीवन में देख सकते हैं he denied once, वो जो यीशु मसीह को नकारे एक he बार, denied second time, दूसरे बार भी नकारे and he denied third time. और तीसरे बार भी नकारे। And the Bible says, लेकिन वचन ऐसा कहता है, then the rooster crowed. Rooster, murga. जो मुर्गी जो है, So, and Jesus turned and looked at Peter. मुर्गी जो आवाज देने के बाद जो है यीशु मसीह ने पतरस को देखा। Just imagine that scene, आप सोच सकते हो वो सीन के बारे में, like Peter denying Jesus 3 times, पतरस जो है यीशु मसीह को 3 बार नकारते हैं, and Jesus looking at Peter. यीशु मसीह जो है वो पतरस को देखते हैं। That was not an angry look. वो जो है गुस्सा वाला जो ये नहीं था That भाव। look by Jesus at Peter was not a hateful look. वो जो है वो हेटफुल या ऐसे गुस्सा वाला जो भाव नहीं था यीशु मसीह के चेहरे पे, But that look was like Jesus telling Peter, लेकिन वो जो देखने के बाद ऐसा दिखता है कि यीशु मसीह ऐसा बोलना चाहते थे पतरस से, like, I told you that I still love you. मैंने कहा था कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। And the Bible says, वचन कहता है then when Peter denied Jesus 3 times, पतरस जब 3 बार यीशु मसीह को नकारे, he went outside वो जो है बाहर चले गए and he wept bitterly. और वो बहुत जोर का रो पड़े। Then what happens? What did Peter do next? और उसके बाद पतरस ने क्या किया? After the crucifixion, यीशु मसीह के क्रूसित होने के बाद, after all the shame और ये शर्मिंदगी के बाद, and all the guilt, वो जो भी गिल्ट था, Peter said something very simple in John chapter 21. पतरस जो है जॉन चैप्टर में ऐसे बोलते हैं, 21 चैप्टर में Peter said, पीटर ऐसे बोलते हैं, I am going fishing. मैं जो है मछली पकड़ने जा रहा हूँ। Oh, you may say like going fishing is nothing wrong in going fishing. आप ऐसे बोल सकते हो मछली पकड़ना कोई गलत बात नहीं है, But it wasn't only about fishing. लेकिन वो मछली पकड़ने के बारे में पूरी तरह से नहीं था। Actually, Peter was going back into his old life once again. पतरस जो है अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा रहा Peter था। was going back into his life before he met Jesus. पतरस जो है वो उसके वो दुनिया में वापस जा रहा था यीशु But मसीह why? मिलने के बाद। क्यों? Because of shame. क्योंकि शर्मिंदगी की वजह से। Yes, it was shame that made Peter to take such a step. ये शर्मिंदगी है पतरस को वो वापस जाने के लिए वो फोर्स किया उनको। The words must have come to his mind. वो जो शब्द है उनके दिमाग में आ गए थे। As we just read, when we commit a mistake, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम जब गलती करते हैं, those words of shame come to our mind. वो शर्मिंदगी के जो शब्द है हमारे दिमाग में आते हैं। And same thing must have happened to Peter. और ऐसे ही पतरस के जीवन में भी हुआ होगा। He must have told himself, वो अपने आप को ऐसे बोले होंगे, I am a failure. मैं हारा हुआ व्यक्ति हूँ। I failed as a disciple. मैं एक छेलों के जैसे छेला होना नहीं अच्छा नहीं हूँ। I denied Jesus. मैंने यीशु मसीह को नकारा हूँ। I am not worthy anymore. मैं जो है एक मूल्यवान व्यक्ति नहीं हूँ। Have you ever done what Peter did? आपने ऐसा किया है कभी जैसे पतरस ने किया? Maybe not exactly like how Peter did, लेकिन आपने ऐसे पतरस के जैसा नहीं किया होगा। but we all must have gone through a similar situation like this before. हम भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके होंगे। We must have gone back to our old life हम जो है पुरानी दुनिया में भी चले गए होंगे, because we felt that we are unworthy. हमको ऐसा लगता है कि हम मूल्यवान नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। Must have felt we are unworthy to move forward. हमको ऐसा लगा हो कि हम आगे नहीं जा सकते हैं। But here is the beautiful part. लेकिन यहाँ पे एक खूबसूरत चीज़ है। We see that Jesus did not replace Peter. यीशु मसीह ने जो है पतरस को बदला नहीं। Jesus did not cancel the name of Peter. यीशु मसीह ने पतरस का जो नाम को कैंसिल नहीं किया। Jesus did not tell his disciple यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को ऐसा नहीं बोला that he had a meeting with any of his disciples, और वो जो ऐसा मीटिंग नहीं किया like find someone for me
वो ऐसे मीटिंग नहीं किए कि मुझे ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढो, someone who is better than Peter, ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढो जो पत्रोस से भी बेहतर हो, someone who is faithful जो विश्वासी हो, than Peter. पत्रोस से भी ज़्यादा। Jesus never said any of this. यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। In fact, in John chapter 21, जॉन के 21 चैप्टर में Jesus goes to the shore यीशु मसीह जो है वो समुद्र के किनारे में जाते हैं and he restores Peter publicly. और वो जो है सबके सामने पत्रोस को जो है उसको उठाते हैं। 3 times Peter denied Jesus. 3 बार जो है पत्रोस ने यीशु मसीह को नकारा। But we see in the story लेकिन यहाँ पे इस कहानी में देखते हैं that 3 times Jesus asked Peter, 3 बार जो है यीशु मसीह ने पत्रोस से पूछा, like, Peter, do you love me? पत्रोस तुम क्या मेरे से प्रेम करते हो? We see that Jesus did not ask Peter this question यीशु मसीह ने पत्रोस से नहीं पूछा ये प्रश्न to put Peter to shame, शर्मिंदगी में डालने के लिए, but he did this ये क्यों यीशु मसीह ने किया इसलिए to restore him. क्योंकि उसको वो उस गलतियों से या उसके जो शर्मिंदगी से उठा And पाए। then Jesus said, feed my sheep. और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे चरवाहों को भरो। This is the same Peter who denied Peter. Same Peter who denied Jesus. ये पत्रुस वही है जो यीशु मसीह को नकारे। And he is preaching at the time of Pentecost. और ये जो पत्रुस जो है पेंटिकोस्ट के समय में जो है प्रचार कर रहे हैं। And now he is a very bold preacher. और पत्रुस जो है अभी जो एक निडर प्रचार है। Once upon a time he was ashamed. एक बार जो है पत्रुस जो है शर्मिंदगी में जा रहे थे। But the Bible says लेकिन वचन कहता है that he was one of the boldest leader in the early church. वो पहले के कलीसिया में सबसे एक निडर व्यक्ति थे पत्रुस। So what do we have to say from all this? हम क्या कह सकते हैं ये सब चीज़ों से? That failure is not final. हार जो है वो एकदम फाइनल नहीं है। Like going back is not the solution. वापस जाना जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं है। Peter thought that his story had ended after denying Jesus. पतरस ने सोचा कि यीशु मसीह को नकारने के बाद उनका जो जीवन जो है वो खत्म हो गया। But Jesus had a surprise for Peter. लेकिन यीशु मसीह के पास जो है पीटर के लिए जो एक सरप्राइज था। His denial was turned into calling. उसका जो नकारात्मक जो था नकारना जो था वो उसका एक बुलावट हो गया। And because Jesus restored Peter, यीशु मसीह ने पतरस को वापस उठा लिया उसके बाद today he can restore anyone. और पतरस जो है बाकी किसी को भी उसकी गलतियों से या उनकी शर्मिंदगी से उठा सकते हैं। Whoever thinks like he is gone, he is far away, और उनको कोई भी ऐसा लगता है उनको कि हम दूर चले गए हैं, can remember that God is there with him. आप ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर हम आपके साथ हमेशा So रहेगा। how can a lost person come back to God? कैसे जो खोया हुआ व्यक्ति वापस परमेश्वर के पास आ सकता है? If you remember, in this same chapter, there is another parable. एक उसी चैप्टर में आप देखते हैं एक और दृष्टांत है। The parable of the prodigal son or the lost son, you can say. एक दृष्टांत जो है वो खोया हुआ पुत्र के बारे में देख सकते हैं। So this parable of prodigal son, we all know. ये जो खोया हुआ पुत्र के बारे में जो दृष्टांत है वो आपको सबको पता है। This son finally realizes ये जो पुत्र है जो है उनको महसूस होता है what mistake he made. उन्होंने क्या गलती किया है। And he goes back. और वो वापस आते हैं। He goes back to his father. उसके पिताजी के पास वापस आते हैं। The simple truth is, वो सच्चाई ये है कि if you have gone away, आप अगर दूर चले गए होगे तो God is not telling you that you need to become perfect. परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप एक सिद्ध व्यक्ति बनो। God is simply telling you, come just as you are. परमेश्वर सिर्फ इतना ही कहता है कि जैसे हो आप वापस आ जाओ। And how we can do that? और हम कैसे कर सकते हैं? Just say a simple prayer. आप सिंपल सा एक जो साधारण सा प्रार्थना कीजिए। God, I feel I am far away from you. ऐसा प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे दूर हूँ। I have messed up in my life. मेरे जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो गई है। I need you, God. मुझे आप चाहिए परमेश्वर। That's a simple prayer. ये एक साधारण प्रार्थना है हमारे जीवन में कर सकते हैं। And you can come back to God just as you are. और आप परमेश्वर के पास जैसे हो वैसे वापस आ सकते हैं। You don't have to try to fix yourself. आपको बहुत सारी चीजें फिक्स करने की जरूरत नहीं है। Just leave it to God. वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो।
God is telling, stop running from me. परमेश्वर ऐसा कहता है कि मुझसे जो है दौड़ना बंद करो, Stop hiding. मुझसे छुपना बंद करो। God says, I already know your condition. परमेश्वर ऐसा कहता है कि आपकी जो भी कंडीशन है वो मुझे पता है। I am waiting for you मैं जो हूँ रुक रहा हूँ आपके लिए। with an open heart. मेरे जो हृदय को खोल के मैं आपके लिए रुक रहा हूँ। Yes, the shame, what we have just heard, जैसे हमने सुना शर्मिंदगी, says that you are finished. शर्मिंदगी ऐसे बोलते कि आप तो खत्म हो चुके हो, But God says that you are forgiven. पर परमेश्वर ऐसा कहता है कि आपको माफी मिल चुकी है। Shame says that you failed. शर्मिंदगी ऐसा कहते हैं कि तुम हार गए हो, But God says that you are still mine. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अभी भी मेरे हो। So we see that failure is not the end of the story. हम ऐसा देख सकते हैं कि हारना जो है वो कहानी का अंत नहीं है। Yes, Peter failed, पतरुस जो है वो हार गया था, but yet God used him mightily. लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया। And God says, I just don't only forgive, परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं माफ़ी ही नहीं, but I restore. लेकिन आपको जो है पूरी तरह से उठा लूँगा, पूरी तरह से चंगा कर लूँगा। So I would like to conclude मैं ये कहना चाहता हूँ, that remember that in God's book, ऐसा आपको देखना है कि परमेश्वर के जो वचन है, that you are not disqualified आप जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, आपको निकाला नहीं गया है when we fail, जब हम हार जाते हो, but we are invited back. लेकिन परमेश्वर जो है हमको वापस बुलाते हैं। Amen. आमीन। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father God, परमेश्वर, thank you Lord for this word, oh Lord. धन्यवाद परमेश्वर ये वचन के लिए। Lord, if there is anyone, oh Lord, परमेश्वर यहाँ पे ऐसा कोई भी है who has gone far away from you, जो आपसे बहुत दूर चले गए हैं, who is hiding from you, oh जो Lord, आपसे छुप रहे हैं परमेश्वर, bring them back safely home, oh Lord. उनको जो है वापस लेके आना परमेश्वर। Father, we pray, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, we pray, oh Lord, हम प्रार्थना करते हैं to break that power of shame, oh Lord, वो जो है शर्मिंदगी की जो ताकत को वो तोड़ दो परमेश्वर। that is keeping them, oh Lord, to coming them back to you, oh Lord. वो जो शर्मिंदगी है उसको तोड़ के वापस उनको लेके आना परमेश्वर। Remind them your words, oh Lord, उनको याद दिलाना आपके शब्दों को, that failure is not final, oh Lord. कि हार जो है वो अंत नहीं होता। Give them courage, oh Lord, वो जो उनको जो करेज देना परमेश्वर, to take that step, oh Lord, back towards you, oh Lord. उनको वो करेज देना कि वो कदम बढ़ाए आपके यहाँ पे आने के लिए। Send the right person in their lives, oh उनके Lord, जीवन में एक सही व्यक्ति को भेजना परमेश्वर, to guide them उनको जो चलाने के लिए, and to encourage them, oh Lord. उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए, Let them feel, oh Lord, उनको महसूस हो परमेश्वर that they are not alone, oh Lord, वो जो है अकेले नहीं है, that you are with them, oh Lord, कि आप उनके साथ हो that your परमेश्वर, love always surrounds them, oh Lord. कि आपका जो प्रेम है वो उनको जो है वो घेरता है परमेश्वर। Once again, Lord, we want to thank you, Lord. परमेश्वर एक और बार धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, that you have loved us with an everlasting love, oh Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप अनंत प्रेम से हमसे प्यार करते हो And for परमेश्वर। your promise, oh Lord, we want to thank you, Lord, आपके वायदे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। that you will never leave us nor forsake us, oh आप Lord. कभी भी हमको छोड़ेंगे नहीं, ना ही त्यागेंगे। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Let us all stand. You deserve the glory and the honor as we lift our hand and worship, as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor
is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. हाँ, क्यों ना उस संदेश के लिए जोरदार ताली बजाते इस समय। अद्भुत संदेश था, है ना। जस्ट मैं सोच रहा था उस संदेश के दौरान, है ना, तो परमेश्वर जो है बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम जो है यीशु मसीह को धरती पर लेके आया, है ना, और अनुग्रह उसका जो है मनुष्य को जो है स्वर्ग लेके जाता है। कितनी अद्भुत बात है। तो हाँ, भले पतरस गिर गया लेकिन यीशु का अनुग्रह काफ़ी था, है ना। तो आज भी हमारे जीवन में हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, तो हमें ये नहीं करना है कि हमें परमेश्वर से दूर जाना है, लेकिन हमें नज़दीक जाना है, क्योंकि वहाँ पे हमें अनुग्रह मिलता है। और अनुग्रह जो है हमें खड़ा होने में सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है ना, कि चाहे धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। तो कहने का मतलब हम अनुग्रह में गिरते हैं और अनुग्रह में खड़े होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वो स्वभाव है जो हमें अनुग्रह देता है। भले पतरस को दिया, क्या आज हमें वो नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं गॉड, इस अद्भुत संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमें अनुग्रह देने के लिए इस धरती पर आए, आप हमें प्रेम देने के लिए धरती पर आए परमेश्वर, हमें क्षमा देने के लिए आप धरती पर आए। इसलिए धन्यवाद देते हैं गॉड। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो भी आज आपके दास के द्वारा ये वचन सुनाया गया प्रभु, रियली प्रभु उस वचन को प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने देना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यहाँ से जब हम अपने घर की तरफ जाते हैं परमेश्वर, पूरे हफ्ते में परमेश्वर आप हमसे बात करिए परमेश्वर वचन के माध्यम से। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जितने लोग आए प्रभु, उन सभी को प्रभु आपने आशीषित किया। और प्रभु जो लोग नहीं आए उन्हें प्रभु अगली बार आने में सहायता करिए परमेश्वर। हो सकता है कोई बीमार हो या प्रभु या किसी स्थिति से गुजरते हो गॉड, आप छूना सभी को, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके पासवान के लिए हम प्रे करते हैं। आप प्रभु धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। जब वो वापस आएंगे परमेश्वर, हम अद्भुत गवाहियाँ सुनना चाहते हैं परमेश्वर, जो आप मिशन फील्ड में कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, उनकी यात्रा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें सुरक्षित लेके आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब हम यहाँ से जाते प्रभु, आप हमारी सहायता करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आने वाली जो 11 तारीख में परमेश्वर जो पिकनिक है परमेश्वर, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। जिन लोगों ने प्रभु अपना कदम उठाया प्रभु उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रभु, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, आप बात करिए। और प्रभु और जिन्होंने भी प्रभु अभी तक निर्णय नहीं लिया गॉड, उन्हें निर्णय लेने के लिए आप सहायता करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु फाइनेंस आप पूरा करिए परमेश्वर। हो सकता है कि ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन गॉड आप पूरा करेंगे, ऐसे हमारी प्रभु विश्वास है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।